Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is second appeals are restricted to substantial questions of law. Why news? Recently the Supreme Court in the case of CP Francis versus CP Joseph and others emphasized that high courts must record strong reasons when exercising their discretionary power to frame additional substantial questions of law under section 100 clause 5 of the Civil Procedure Code in second appeals. What were the court observations? The case involves a family property dispute over a joint will executed by an elderly couple who owned land in Kerala. The will bequeathed the remaining property to one son with provisions for monetary payments to siblings subject to certain conditions. 5 siblings filed a suit in 2009 challenging the validity of the will, claiming it was executed under undue influence and was forged. The siblings alleged that their father was mentally incapable at the time of the will's execution due to ailments. The primary legal issue was whether the will was valid and if the property should be equally distributed among all heirs. What were the court observations? The Supreme Court bench comprising of Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice S.V.N. Bhatti emphasized that high courts can frame additional questions of law in second appeals under section 100 clause 5 of CPC but only in exceptional cases with strong recorded reasons. Introducing a new legal argument at the second appeal stage like section 67 of the Indian Succession Act is improper as it creates a new case. The court upheld the validity of the will, directing compensation for beneficiaries with increased amounts and interest. Second appeals are restricted to substantial questions of law and cannot re-examine factual findings, serving as the final legal challenge in the judicial hierarchy. Provision involved is Section 100 of CPC, which restricts second appeals to high courts to substantial questions of law only. Appeals from subordinate appellate courts are permitted only when significant legal issues are involved, not factual disputes. Appeals are heard solely on the formulated question. The proviso allows high courts to frame additional substantial questions with recorded reasons, but this power is discretionary and exceptional. It's the time for practice question. Under section 100 of the CPC, what is the primary purpose of a second appeal? Option A, to re-examine factual findings. Option B, to review judicial efficiency. Option C, to address substantial question of law. And option D, to conduct fresh trials. Pin down your answers in the comment section below. लीगल अपडेट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है द्वितीय अपीलें विधि के सारवान प्रश्नों तक ही सीमित हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सीपी फ्रांसिस बनाम सीपी जोसेफ एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि उच्च न्यायालयों को द्वितीय अपीलों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 105 के अंतर्गत विधि के अतिरिक्त सारवान प्रश्नों को तैयार करने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय मजबूत कारणों को दर्ज करना चाहिए। आइए अब जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि को। यह मामला केरल में जमीन के मालिक एक बुजुर्ग दंपति द्वारा की गई संयुक्त वसीयत को लेकर पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा है। वसीयत में शेष संपत्ति एक बेटे को दी गई थी, जिसमें कुछ शर्तों के साथ भाई बहनों को आर्थिक भुगतान का प्रावधान था। 5 भाई बहनों ने 2009 में वसीयत की वैधता को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया था कि यह अनुचित प्रभाव में बनाई गई थी और जाली थी। भाई बहनों ने आरोप लगाया कि वसीयत के निष्पादन के समय उनके पिता बीमारियों के कारण मानसिक रूप से अक्षम थे। प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या वसीयत वैध थी और क्या संपत्ति सभी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित की जानी चाहिए। आइए नजर डालते हैं न्यायालय की टिप्पणियों पर। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च न्यायालय धारा 105 सीपीसी के तहत दूसरी अपीलों में कानून के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर सकते हैं, लेकिन केवल असाधारण मामलों में मजबूत दर्ज कारणों के साथ। दूसरी अपील के चरण में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 67 जैसी नई कानूनी दलीलें पेश करना अनुचित है, क्योंकि इससे एक नया मामला बनता है। न्यायालय ने वसीयत की वैधता बरकरार रखी और लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि और ब्याज सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया। द्वितीय अपीलें विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक ही सीमित होती हैं तथा तथ्यात्मक निष्कर्षों की पुनः जांच नहीं की जा सकती तथा न्यायिक पदानुक्रम में अंतिम कानूनी चुनौती के रूप में कार्य करती हैं। आइए नजर डालते हैं शामिल प्रावधानों पर। धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता।
सीपीसी की धारा 100 उच्च न्यायालयों में द्वितीय अपील को केवल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक ही सीमित रखती है। अधीनस्थ अपीली न्यायालयों में अपील केवल तभी की जा सकती है जब महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे शामिल हों, तथ्यात्मक विवाद नहीं। अपीलों की सुनवाई केवल निर्धारित प्रश्न पर ही की जाती है। यह प्रावधान उच्च न्यायालयों को दर्ज कारणों के साथ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने की अनुमति देता है, लेकिन यह शक्ति विवेकाधीन और असाधारण है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए तथ्यात्मक निष्कर्षों की पुनः जांच करना, विकल्प बी न्यायिक दक्षता की समीक्षा करना, विकल्प सी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करना या विकल्प डी न्याय परीक्षण आयोजित करना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।